Kendini. Bırak onu soysuz. Hepsinin hayatı senin. Ya teslim olursun ya da hepsini tek tek gebertirim. السلام علیکم ناظرین، اس کیس کے آغاز میں حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان جاویدار قبیلے میں موجود تھیں۔ اسلان کہتی ہے جب سے وہ آیا ہے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں وہ چاہتا کیا ہے؟ اسلان کہتی ہے وہ جرگہ بلا کر ہمارے قبیلے کا سردار بننا چاہتا ہے، لیکن میں اپنے بھائی کی امانت کی حفاظت کروں گی اور ہار نہیں مانوں گی۔ حلیمہ کہتی ہے ہم بھی ارطغرل کی امانت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لیکن دندار کچھ اور سوچ رہا ہے۔ وہ ہنلی بازار بیچ کر واپس اپنے بھائیوں کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اسلان کہتی ہے کائی قبیلے نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں کیا کروں گی؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں ابھی اطمینان رکھو بیٹی، ابھی کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے۔ دوسری طرف ارطغرل محالث کے آدمی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ آدمی اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اس سے پوچھتا ہے بتاؤ محالث کس کے لیے کام کرتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے رکو میں بتاتا ہوں۔ ارطغرل رک جاتا ہے۔ اتنے میں آدمی ارطغرل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارطغرل اسے دوبارہ مارنے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے مزید دو آدمی آ جاتے ہیں۔ اس طرح ارطغرل ان دونوں کو مار دیتا ہے۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں حائمہ خاتون کا سامنا کراجہ سے ہو جاتا ہے۔ اسلان کہتی ہے یہ کراجہ خاتون ہے، بہادر صاحب کی بیوی۔ کراجہ کہتی ہے انشاءاللہ اسلان کے جانے کے بعد ہماری دوستی جاری رہے گی، کیونکہ شادی کے بعد یہ تربت طلب کے ساتھ چلی جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہے ہماری دوستی تب تک ہے جب تک اسلان یہاں موجود ہے۔ پھر اسلان کہتی ہے کراجہ خاتون کسی بھی چیز کے بارے میں اتنی پر یقین مت ہو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ دوسری طرف سمکو نے آزاد ہونے والے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا اور باقیوں کو پکڑ لیا تھا۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سمکو کہتا ہے اپنے ہتھیار ڈال دو ارطغرل، ورنہ یہ سب مارے جائیں گے۔ ارطغرل اپنی تلوار پھینک دیتا ہے۔ پھر ایک آدمی ارطغرل کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ اتنے میں سمکو کا ایک آدمی آ کر اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل نے ہمارے دو آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ سمکو کہتا ہے لعنت ہو اس ترک پر۔ پھر سمکو کا آدمی کہتا ہے ہمیں محالث کے آدمی کے گھوڑے کے پاس یہ کبوتر ملا تھا۔ سمکو کہتا ہے اب اس کے ذریعے ہم آرس کو پیغام بھیجیں گے کہ ارطغرل ہمارے پاس ہے، پھر وہ سونا لانے کی تیاری کرے گا۔ ہم رات ایک قریبی غار میں گزاریں گے، چلو روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد سمکو کے آدمی صاحب کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف کراجہ کہتی ہے تو آپ ہنلی بازار بیچ کر یہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دھندار نے بہادر صاحب کو کہا ہے کہ اگر وہ اپنے قبیلے کا سردار منتخب ہو گیا تو بازار بہادر صاحب کو بیچ دے گا۔ اسلان کہتی ہے ان دونوں کی ملاقات کب ہوئی؟ کراجہ کہتی ہے امیر سعد الدین نے ان دونوں کو ملوایا تھا۔ پھر حائمہ خاتون اور حلیمہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے جو ارطغرل کو خواب آ رہا تھا۔ ارطغرل کچھ آدمیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ پہنچتا ہے تو وہاں بہت سارے مزید آدمی آ جاتے ہیں اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل باقی سب کو مار دیتا ہے اور آخر میں ان کے سربراہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ ارطغرل اس کو گرا کر کہتا ہے اپنا چہرہ دکھاؤ کمینے، کون ہو تم؟ پھر ارطغرل اس کے چہرے سے نقاب ہٹانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، لیکن اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ ایک غار میں موجود تھا۔ اس کا ساتھی پوچھتا ہے آپ نے بھاگ کر اپنی جان کیوں نہیں بچائی ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے ہم اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں۔ اتنے میں سمکو اندر سے آ جاتا ہے اور دوسرے آدمی کو کہتا ہے میں تمہیں کتنی دفعہ کہوں کہ ارطغرل سے بات نہیں کرنی، آپ دور رہو اس سے۔ پھر ارطغرل سمکو کو کہتا ہے ان سب کو جانے دو، تمہارا کام صرف میرے ساتھ ہے۔ سمکو کہتا ہے
मैं तुम्हें और इन्हें बेचकर इस इलाके से चला जाऊंगा। अर्तुगरुल कहता है, वो जानता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। वो तुम सबको जल्द या देर से मार देगा। अगर तुम मुझे और इन सब गुलामों को जाने दो तो मैं उसे मार दूंगा और तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को उससे बचा लूँगा। सिमको हंसते हुए कहता है, तुम उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, अगर होते तो उसके जाल में ना फंसते। यह कहकर सिमको अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून और हलीमा वापस अपने कबीले पहुंच गई थी। हलीमा कहती है, धुंधार के बाजार बेचने के फैसले से बहादुर के लिए जावदार कबीले का सरदार बनना आसान हो जाएगा। इतने में धुंधार वहां आकर कहता है, जो भी बाजार की मुनासिब कीमत अदा करेगा बाजार उसका हो जाएगा और बहादुर साहब काबिल कबूल आदमी हैं। हलीमा कहती है, और असलान खातून का क्या होगा? धुंधार कहता है, वो हमारे कबीले में आकर अपने शोहर के साथ रह सकती है। हलीमा कहती है, मैं आपके फैसले को नहीं मानती, आपसे मैं अर्तुग साहब का साथ दूंगी। ये कहकर हलीमा बाहर निकल जाती है। कारा जैसर में आरिस मारिया के पास बैठा हुआ था। मारिया बेहोशी की हालत में पड़ी थी। इतने में लूकस अंदर आकर कहता है, अमीर सादुद्दीन ने खबर भेजी है कि धुंधार और बहादुर आपस में रजामंद हो गए हैं। इतने में एक और सिपाही अंदर आकर आरिस को खत देते हुए कहता है, ये खत कबूतर लाया है। आरिस उसे पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, आरिस, मैंने तुम्हारे सारे आदमियों को मार डाला है। अर्तुगरुल अभी भी मेरे पास है। अब मुझे 10,000 सोने के सिक्के अदा करो और 2 मुल्कों के दरमियान मतवक्को जंग को बचा लो। अगर तुमने कीमत अदा ना की तो मैं अर्तुगरुल को सब कुछ बता दूंगा। सिमको। आरिस खड़ा होकर लूकस को कहता है, अब जाओ और उन सब को कत्ल कर दो। यह सुनकर लूकस बाहर निकल जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। काय कबीले में हलीमा सुल्तान और हकीम अर्तुग वामसी के खेमे में पहुंच जाते हैं। हकीम अर्तुग कहता है, धुंधार साहब बंदी बाजार बेचकर यहाँ से हिजरत करना चाहते हैं और अर्तुगरुल साहब के मकसद से पीछे हटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस काम को रोकें और आप हमारा साथ दो। वामसी कहता है, हर चीज़ बुलाई जा सकती है लेकिन अर्तुगरुल साहब का मकसद नहीं। मैं आपके साथ हूँ और हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ धुंधार ने भी कुछ जरगे के आदमियों को बुलाया हुआ था और उन्हें कहता है, अर्तुग साहब आराम से नहीं बैठेंगे, वो लोगों को अपने साथ करने की कोशिश करेंगे। हम भी एक एक आदमी से बात करेंगे और उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। बाजार बेचकर हम सारा सोना कबीले की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। कारा जैसर में मारिया होश में आ जाती है। आरिस इसी इंतज़ार में बैठा था। फिर वो मारिया के पास आकर कहता है, अब या तो तुम बोलोगी या फिर आखिरी दफ़ा बोलोगी। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, मुझे सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मारिया कहती है, मुझे ये सब कुछ एंथियोस के कहने पर करना पड़ा। उसने मेरे भाई को गुलाम बनाया हुआ था। दरवाजे पर वो खत मैंने लटकाया था। आरिस कहता है, तुमने मेरे साथ गद्दारी की। मारिया कहती है, मुझे माफ़ कर दें, मैं मजबूर थी। आरिस कहता है, उन्होंने तुम्हें जाल में फंसाया, मैं तुम्हें उनसे बचा लूँगा। अब मुझे बताओ कि सिमको का वो आदमी एंथियोस कहाँ है? दूसरी तरफ तुर्गत अपने साथियों के साथ वापस अपने कबीले की तरफ रवाना था। दूसरी तरफ सिमको ने अर्तुगरुल और बाकी लोगों को एक जगह बिठाया हुआ था। इतने में एंथियोस की तरफ से मजीद आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल का साथी कहता है, अब ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब हम यहाँ से नहीं भाग सकते। अर्तुगरुल कहता है, कभी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूसी गुनाह है। दूसरा आदमी कहता है, मैंने ज़िंदगी में आप जितना बहादुर आदमी नहीं देखा अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, बाकी सब साथियों को बता दो कि अब हम एक आखिरी दफ़ा लड़ाई लड़ेंगे, वो तैयार हो जाएं। इतने में सिमको अपने आदमियों को कहता है, गुलामों को खड़ा करो, हम जा रहे हैं। कारा जैसर में आरिस अपने शहंशाह की तरफ एक खत लिखता है जिसमें वो लिखता है, हमारी सरहद के करीब तुर्क कबीले बहुत बुरी हालत में हैं। अमीर सादुद्दीन अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कुछ भी करेगा। बहुत जल्द हली बाज़ार भी हमारा हो जाएगा। आप अपनी फ़ौज भेज दें। अब वक्त आ गया है कि हम तुर्कों से वो सब कुछ छीन लें जो उन्होंने हमसे छीना था। काय कबीले में जरगे की तैयारियां हो रही थीं। सब लोग बाहर खड़े थे। इतने में कबीले का ढोल बजता है। तुर्गत और उसके साथी सिपाही जंग से वापस लौट आए थे। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो सब अपने घोड़ों से उतरकर अपने प्यारों से मुलाकात करते हैं। फिर तुर्गत कहता है, हमने अपने सुल्तान और अपनी रियासत की जिम्मेदारी अल्लाह के हुक्म से पूरी कर दी है और अब वापस आ गए हैं। फिर तुर्गत पूछता है, ये जिरगे के आदमी क्यों खड़े हैं वालदा, क्या सब खैर है? हलीमा कहती है, हम नए सरदार का इंतखाब करने वाले हैं। ये सुनकर तुर्गत कुछ हैरान होता है। फिर हलीमा खातून कहती हैं, हम अंदर चलकर इस बारे में बात करते हैं। फिर वो तुर्गत को लेकर अंदर चल पड़ते हैं।
अंदर जाकर तुर्गत काई कबीले के झंडे को उठाकर चूमता है और अर्तुगरुल को याद करके दुखी हो जाता है। हैमा खातून कहती हैं, अभी भी अर्तुगरुल का दुख ताज़ा है। हलीमा कहती है, इतना ताज़ा है कि धुंधार साहब बाजार को बेचकर वापस अपने भाइयों के पास जाना चाहते हैं। यह सुनकर तुर्गत चौंक जाता है। फिर वह हैरान होकर पूछता है, हैमा वालदा, धुंधार साहब, क्या ये सच है? धुंधार कहता है, हम बाजार बेचकर पहले की तरह मुतहद होना चाहते हैं। तुर्गत कहता है, हम कई साल अर्तुगरुल साहब के साथ मिलकर लड़े हैं, क्या ऐसा करना उनकी याद के साथ गद्दारी नहीं होगी? बामसी कहता है, बेशक ये गद्दारी होगी भाई, यकीनन गद्दारी होगी। हैमा खातून कहती हैं, अर्तुगरुल के शहीद होने के बाद हमारा कबीला मुश्किल में आ गया था, इसलिए धुंधार को ये फैसला करना पड़ा। अर्तुगरुल साहब इस फैसले के खिलाफ हैं और अब ये खुद सरदार बनना चाहते हैं। फिर हलीमा कहती है, असलान भी मुश्किल में है, उसका चचा बहादुर वापस आ गया है और वो अपना कबीला भी यहाँ मुंतकिल करना चाहता है। तुर्गत पूछता है, वो आदमी कैसा है अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल कहता है, वो बिल्कुल उराल जैसा है। फिर तुर्गत कहता है, हैमा वालदा, हमारे सिपाही अभी अभी जंग से वापस आए हैं, हमारे कुछ सिपाही शहीद हो गए हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो ये जरगा कल मुनक्कद कर लें और शहीदों के घर वालों को अकेला ना छोड़ें। इस बात पर सब रजामंद हो जाते हैं। फिर तुर्गत कहता है, अब मुझे जावदार कबीले जाना होगा, उनके सिपाही भी शहीद हुए हैं, मैं जाकर उनके घर वालों से अफसोस करूँगा। यह कहकर तुर्गत वहाँ से चला जाता है और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।